We are doing a chapter 9 biomolecules, and we have just now started with this topic enzyme. It's a new topic for everyone, and there is also one student who has joined with you, Pallavi. So don't worry, जो हमारा topic चल रहा है, you just join in that chapter. And for the backlog, I'm taking classes on Sundays. So every Sunday we are having extra class in which I am trying to cover the previous syllabus from chapter 2 only, because chapter 1 is deleted. Okay, Pallavi and Meenakshi. Okay, so enzyme के बारे हाँ में. जी। Okay, so enzyme के बारे में हम पढ़ रहे हैं. Enzyme बना किसका है? They are made up of proteins. They are proteinaceous in nature. Protein is very important. I told you our skin is made up of protein. Your hair, your nails, even the horns in animals, the horns हो गए, even the जो ivory वो होती है, tusk in the elephants, that is again they are all made up of protein. So protein, even your hair which are growing, they are all made up of protein. तो प्रोटीन, कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो बनाते हैं एंजाइम, और वो जो एंजाइम है दे एक्ट एज बायो कैटलिस्ट. तो बायो कैटलिस्ट का मतलब क्या है? बायो मीन्स लाइफ, कैटलिस्ट विच हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन complex food into simpler components. That means आपने जो खाना खाया है, just now I told you, Meenakshi, I was telling everyone, if you take a single bite, whenever you are eating, as if you are eating your lunch, you are taking a bite, और उसमें you are taking paneer, that is protein, paneer या फिर chicken, या दाल ले रहे हो या दही ले रहे हो, your chapati is your carbohydrate, chapati के ऊपर घी लगा हुआ है, that is your ghee is fat. So carbohydrate, protein, fat, you are taking everything in one go. That is you're showing holozoic nutrition. जब हम पूरी चीजें एक बारी में सब कुछ खाते हैं, that is called as holozoic nutrition. तो जब आपने पूरा सब कुछ खाया, it is the enzyme which helps in breaking down the complex components into simpler ones. The enzymes helps in breakdown of components. सो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज में, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स सबको पता चल रहा होगा एक्सेप्ट मीनाक्षी एंड पल्लवी, ग्लूकोज जब मिलते हैं, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स दे जॉइन इन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स. तो कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक डाउन होंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. Is it fine now? Yes, Laksh? Yes, ma'am. And yes, Ansh? Is it fine? My voice is audible. I've changed my seat. So, okay, so enzyme, अभी मैंने हम बात कर रहे हैं enzyme के बारे में. मैंने बताया they are proteinaceous in nature, they act as biocatalyst. तो अभी हम बात कर रहे थे carbohydrates की, they are made up of glucose, and proteins, they are made up of amino acid. प्रोटीन को अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे, प्रोटीन इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, अगर हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे इट विल फॉर्म अमाइनो एसिड्स. एंड लास्ट, अगर हम फैट्स को ब्रेक डाउन करते हैं, फैट्स को या वैक्सेस को, वैक्स आपको बताया था जिसकी कोटिंग की जाती है कपड़ों के ऊपर या फैब्रिक्स या फिर काफ़ी चीज़ों के ऊपर कोटिंग की जाती है, जिसको हम वाटर प्रूफिंग कहते हैं. इट इज़ डन विद वैक्स. और फैट्स जो हैं, जो ऑयल है, घी है, आप वो खाते हो, दैट इज़ अ फैट. तो फैट्स जब हम ब्रेक डाउन होते हैं हमारी बॉडी में, दे आर चेंज टू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. आई होप अब सबको समझ आ रहा होगा जो लोग शुरू से लगा रहे हैं क्लास इस चैप्टर की. नाउ इट इज़ कंपेरेटिवली इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. एंड जो जिन बच्चों के लिए न्यू है, तो डोंट वरी, आई कीप ऑन रिपीटिंग दीज टर्म्स सो इट विल बी मोर इजी फॉर यू टू रिमेंबर. तो इसमें देखो, आपने देखा एंजाइम के लिए. नाउ राइट डाउन द टॉपिक, राइट डाउन द हेडिंग एंजाइम. एंजाइम के बारे में लिखो. इट इज़ अ बायो कैटलिस्ट. I've written the spelling. It is a biocatalyst, proteinaceous,
It is a biocatalyst. It is a biocatalyst, proteinaceous, proteinaceous, proteinaceous in nature, proteinaceous, proteinaceous in nature, which can enhance the breakdown of chemical reactions. Which can enhance the breakdown of chemical reactions. अच्छा, हमने सिर्फ definition लिखी है. I have okay, Utkarsh, I'm repeating. I guess you have network issue. Yes, ma'am. Okay, so we have just now written the definition of enzyme. It is a biocatalyst. It is written on the screen. Biocatalyst, proteinaceous, which can enhance the breakdown of chemical reaction. अब enzymes के बारे में लिखो. They are of two types. दो तरह के आपको एंजाइम्स मिलेंगे. एक का नाम लिखो सिंपल एंजाइम. जस्ट राइट डाउन सिंपल एंजाइम. सिंपल एंजाइम के बारे में लिखो. इट इज फॉर्म्ड ऑफ ओनली प्रोटीन. सिर्फ प्रोटीन के बने. दे आर फॉर्म्ड ऑफ ओनली प्रोटीन. फॉर एग्जाम्पल, हमारे स्टमक में बहुत स्ट्रॉन्ग एंजाइम है जिनका नाम है ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन. Trypsin and pepsin. To your surprise, trypsin and pepsin helps in breakdown of protein. अगर हम चिकन, मशरूम्स, पनीर, कोई भी ऐसी चीज़ खाते हैं जिसमें प्रोटीन है, मीट खाते हैं, रेड मीट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट. तो protein digesting enzymes, trypsin and pepsin, they they get activated only in the presence of acid, that is HCl. सबको पता है हमारे पेट में एसिड है. तो दे गेट एक्टिवेटेड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ HCl. और तब हमारे ये एंजाइम्स जो हैं एक्टिवेट होने के बाद HCl की प्रेजेंस में हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ द मीट और प्रोटीन. दे आर मेड अप ऑफ टोटल प्रोटीन, पेप्सिन और ट्रिप्सिन. नेक्स्ट लिखो दूसरी टाइप, कॉन्जुगेटेड. CONJUGATED, कॉन्जुगेटेड एंजाइम. अब आपको समझ आ गया होगा. अगर वो सिर्फ प्रोटीन के थे तो सिंपल एंजाइम्स. नाउ it is formed of protein as well as non-protein part. It is formed of protein part. और protein part write down. ब्रैकेट में आप लिखोगे प्रोटीन पार्ट को, इसमें नाम देंगे एपो एंजाइम. काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आज हम करेंगे. इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें आपको पता चलेंगी. प्रोटीन पार्ट इज एपो एंड नॉन प्रोटीन पार्ट इज non-protein part. ब्रैकेट में लिखोगे को फैक्टर. को मीन्स कंपेनियन. कंपेनियन होता है हमेशा दोस्त. तो को फैक्टर, तो प्रोटीन के साथ कुछ ना कुछ जुड़ा होगा. दैट इज कॉल्ड एज को फैक्टर. तो कॉन्जुगेटेड एंजाइम में एक प्रोटीन पार्ट होगा विच इज एपो एंजाइम, और दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट होगा को फैक्टर. इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो कॉन्जुगेटेड में.
आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe. Iron act as cofactor with enzyme catalase. हम पढ़ेंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैटलेस. कैटलेस वो होता है जो ब्रेक डाउन करेगा. आयरन एक्ट एज कोफैक्टर with enzyme catalase, CATALASE, catalase. Ma'am, Yes. ma'am, what is the function of that non-protein part? I'll explain it, bete. Don't worry. I'll explain. Ma'am, can you please tell again what exactly do we have to write in the example? Example में iron, Fe, iron, act as cofactor with enzyme catalase. मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था. Who was it? Ma'am, Tanvi. Okay, Tanvi. Tanvi, मुझे iron part helps in providing the base जहाँ पे catalytic activity होगी. I'm just giving you an example. There is a reaction in which hydrogen reacts with nitrogen to form ammonia. अब आपको पता है ये दोनों gases हैं. Nitrogen is a gas, hydrogen is a gas, and ammonia is also gas. You cannot react these gases in air, open in air. You need to have some container, है ना? अगर आप इन दो गैसेस को रिएक्ट करवा रहे हो तो यू नीड टू हैव सम कंटेनर टू कीप दीज गैसेस. और ऐसा कंटेनर चाहिए, ऐसा कंटेनर चाहिए जिसमें ये रिएक्शन वो कंटेनर के साथ ना हो. तो इन दिस केस आल्सो निकल और कोबाल्ट दे एक्ट एज कैटलिस्ट. मतलब या तो आयरन का कंटेनर लिया जाता है या ऐसा एलिमेंट जो रिएक्ट ना करे ताकि इसमें ये गैसेस को रखा जाए. And these gases they react with each other, then they form ammonia. Otherwise क्या होगा, ये gases they will start to react with this container also. So ये container के साथ react नहीं करते. This is what is catalyst. It is helping in this reaction. Got it? Catalyst का main function होता है to help in the process of catalysis. Next लिखो characteristics of enzyme. Characteristics of enzyme. सबसे पहला तो characteristics यही है, CHARATRISTICS, characteristics of enzyme. They are proteinaceous in nature. They are proteinaceous in nature. PROTEINACEOUS. They are proteinaceous in nature. तो characteristics या फिर features बात कर रहे हैं हम. Characteristics और features एक ही बात है. तो सबसे पहला point आपने पढ़ा, they are proteinaceous in nature. दूसरा point, they increase the rate of chemical reaction. We are doing features of enzyme. अच्छा किसके नेटवर्क इशू है? Who is it? Okay. Ma'am, please repeat second feature. Second feature. Okay. They increase the rate of chemical reaction. They increase the rate of chemical reaction. Reaction को हम simple form में RXN भी लिख देते हैं. Reaction, this is increase. ये arrow sign और SC डालते हैं. This is for increase. Increase the rate of chemical reaction. Next point. They act as biocatalyst. They act as biocatalyst. हमारी body में भी use होते हैं. Bio means life. They act as biocatalyst and are not used up in reaction. अभी बताया था आयरन का कंटेनर कुछ नहीं होगा उसे. And are not
used up in chemical reaction. They work best at optimum temperature. Can you please repeat the last point? They work best at optimum temperature. Ma'am, please repeat the point. They work best at optimum temperature. इसकी बात हम करते हैं, जैसे अगर अब सर्दियाँ होती हैं, आपने देखा होगा विंटर्स में तो नींद बहुत आती है बिकॉज एंजाइम्स आर इनएक्टिव. बहुत गर्मी हो तो बहुत नींद आती है बिकॉज अगेन एंजाइम्स आर इनएक्टिव. दे वर्क बेस्ट जब ये सीजन अच्छा होता है, फरवरी मार्च, जब आप लोगों के एग्जाम्स होते हैं. नहीं तो सर्दियों में बच्चे बोलते हैं हमें नींद आती रहती है, गर्मियों में बोलते हैं हमें नींद आती रहती है बिकॉज एंजाइम्स दे आर इनएक्टिव एट हायर एंड लोअर टेम्परेचर. इसके एक और एग्जाम्पल, आप अगर फ्लैश लेके आते हो, चिकन लेके आते हो, यू ट्राई टू कीप देम इन रेफ्रिजरेटर्स बिकॉज एंजाइम्स दे डू नॉट वर्क एट लो टेम्परेचर. और हाई टेम्परेचर पे जो एंजाइम है डीनेचर हो जाएंगे. जैसा ऑमलेट बनाना है तो अब वो एक प्रोटीन था, एग वाइट जो एक प्रोटीन है, आपने उसको हाई टेम्परेचर दिया, उसका डीनेचर हो गया, उसकी स्टेट ही बदल गई, वो लिक्विड से सॉलिड स्टेट हो गया. दे गेट डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर एंड दे सीजेस देयर एक्टिविटी एट लो टेम्परेचर. तो इसीलिए ओके, अगेन इट इज क्रैकिंग. अच्छा, इट इज नॉट ऑडिबल नाउ. यस मीनाक्षी, हाँ जी, अब ऑडिबल है. ओके ओके, ठीक है मीनाक्षी. So it works best at optimum temperature. Optimum temperature हम मान के चलते हैं that is 25 to 35 degrees Celsius. ठीक है, 25 to 35 degrees Celsius, that's it. So this is the temperature range. और next लिखो, they show activity at optimum pH. They show activity at optimum pH. pH पता है सभी को? pH is what? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. जैसे हमारे पेट में जो pH है स्टमक में दैट इज 0 to 2, तो एंजाइम पेप्सिन, इसमें एग्जांपल लिखोगे, दे वर्क मैक्सिमम एट ऑप्टिमम pH. एग्जांपल दिए, एंजाइम पेप्सिन वर्क्स एट pH 2. तो एंजाइम पेप्सिन वर्क्स एट pH 2. तो pH भी ठीक चाहिए, टेम्परेचर भी ठीक चाहिए. दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी. बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, दे आर रिक्वायर्ड इन extremely small amount. They are required in extremely small amount. Next point, most enzymes have high turnover number. Write down, I'll explain what is high turnover number. Most of the enzymes, they have high turnover number. इसमें एक एग्जाम्पल है एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस.
इसका माना जाता है टर्नओवर नंबर इज मैक्स, इट हैज मैक्सिमम टर्नओवर नंबर। अब ये क्या करता है, आपको पता है आपके कोल्ड ड्रिंक में पानी के अंदर गैस डाली जाती है, सोडा, जो आपका पानी, सोडा वाटर सभी ने सुना है, तो पानी के अंदर गैस होती है एंड दैट गैस इज CO2। दोनों मिलते हैं, वो फॉर्म करते हैं कार्बोनिक एसिड। तो एक टाइम पे अगर किसी ने सुना हो तो बाबा रामदेव ने बोला था कि जो आप कोल्ड ड्रिंक कोक पीते हो दैट इज कंसीडर्ड टू बी सेम एज योर टॉयलेट क्लीनर्स, क्योंकि इसमें भी टॉयलेट क्लीन किससे करते हैं, एसिड से, तो उन्होंने बताया था, तो ये भी एसिडिक ही है, दिस इज योर कार्बोनिक एसिड। लेकिन हमारी बॉडी में भी कार्बोनिक एसिड बनता है क्योंकि हमारी बॉडी में CO2 है, CO2 और वाटर है, तो इसीलिए वो कार्बोनिक एसिड है। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है, इसको जब हम बैक बनाते हैं वाटर और CO2 की, बिकॉज दिस CO2 हैज टू बी रिलीज फ्रॉम आवर बॉडी, तो जब CO2 को हमारी बॉडी से रिलीज करना है, तो इस CO2 के लिए, which who has joined in just now? Class, who has joined in just now? ओके, सो कार्बोनिक एसिड जब बताया मैंने आपको, ये H2 और CO2 जब मिलते हैं तो कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, H2CO3। और H2CO3 इस कार्बोनिक एसिड, इसकी ब्रेकडाउन के लिए वी नीड दिस एंजाइम। ये बिना अगर आप एंजाइम डालोगे तो इसमें 6 मिलियन टर्नओवर नंबर है, 6 मिलियन मॉलिक्यूल्स इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपके कन्वर्ट हो जाएंगे पानी में और CO2 में। और अगर ये नहीं है तो only 600 molecules are converted into water and CO2 in an hour. Just imagine, अगर ये एंजाइम है तो एक सेकंड में ये एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस, अगर हम इस एंजाइम को डालते हैं तो इस रिएक्शन को H2CO3 को H2 और CO2 बनने में एक सेकंड में 6 मिलियन मॉलिक्यूल हो सकते हैं ब्रेक डाउन। लेकिन अगर ये एंजाइम नहीं है तो एक घंटे में सिर्फ और सिर्फ 600 मॉलिक्यूल्स H2CO3 से H2 और CO2 है। तो माना जाता है दिस एंजाइम हैज मैक्सिमम टर्नओवर नंबर। तो आई होप इट इज क्लियर नाउ कि एंजाइम्स करते क्या हैं, दे हेल्प इन breaking down the complex molecule. You can see this is a complex, yes, into simpler components. This is the main function of enzyme. तो आज जो हमने अभी पढ़ा इनके बारे में, एंजाइम्स के बारे में, तो फीचर्स से अब आपको क्लियर हो चुका है। दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, दे इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन का रेट इंक्रीज करते हैं ये। दे आर बायोकैटलिस्ट एंड आर नॉट यूज्ड अप, जैसे थे वैसे के वैसे रहेंगे। they work best at optimum temperature, optimum pH. They are required in extremely small amount. They have high turnover number. You can write down one more point. They are specific in their action. They are specific in their action. अब इसका मतलब क्या है, अगर किसी ने मिल्क पिया है तो मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए, मिल्क के लिए यू हैव, मिल्क में कौन सी शुगर होती है, लैक्टोज, सबको पता है। दूध में कौन सी शुगर है, लैक्टोज, मिल्क शुगर है। लैक्टोज को तोड़ने के लिए एंजाइम लैक्टेज ही चलेगा, लैक्टेज। किसी भी चीज के पीछे एज लगा दोगे दैट इज योर एंजाइम। सुक्रोज में ओज हटा के एज लगा दिया, सुक्रेज। कैटलिस्ट में एज लगा दिया, कैटलेज एंजाइम। तो लैक्टोज के लिए लैक्टेज एंजाइम, ये ओज था, ओज हटा के एज लगा दिए, एंजाइम बन गया। लैक्टोज को तोड़ना है तो ये टूटेगा किसमें, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। तो इसीलिए हर एंजाइम हर चीज के लिए स्पेसिफिक है, इसके लिए सिर्फ यही एंजाइम चलेगा। तो लिखो लैक्टेज फॉर ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, नेमिंग ऑफ एंजाइम्स। हाउ डू वी नेम देम? अभी अभी मैंने बताया आपको, नेमिंग के लिए हम टर्म यूज करते हैं
nomenclature. किसी भी चीज को नेमिंग करना है, that means nomenclature of enzymes. Nomenclature of enzymes. और मैंने अभी बताया था, पल्लवी एंड मीनाक्षी, आप लोगों को अभी सभी को बताया था मैंने कि if you add A's enzyme, A's word in the end, in the placement of O's या जो भी उसके नाम है, एंड में अगर आप A's ऐड कर दोगे एज प्रीफिक्स तो उसका नाम चेंज हो जाएगा, तो मतलब पता चल जाएगा इट इज एन एंजाइम. तो राइट डाउन, दे आर नेम्ड बाय यूजिंग a prefix A's. To the name they are named by Ma'am, using. please repeat, your voice is cracking. Okay, बच्चे हम nomenclature टॉपिक कर रहे हैं. Nomenclature, is it fine? Yes, ma'am. Nomenclature में आपको बताया नेम कैसे करना है इसका, तो लिखोगे एंजाइम्स आर नेम्ड बाय, दे आर नेम्ड यूजिंग फिक्स, they are named by using prefix A's, ASE, A's to the name of substrate on which it acts. To the name of substrate on which it acts. और इसमें एग्जाम्पल फिर से आप वही लिख दो, सुक्रेज. मैं एक हमने टॉपिक स्टार्ट किया नॉमेनक्लेचर, तो नॉमेनक्लेचर का मतलब है नेमिंग. नेमिंग में आप एंजाइम को नाम कैसे दोगे? बाय एडिंग प्रीफिक्स एज टू द नेम ऑफ सबस्ट्रेट. फॉर एग्जांपल सुक्रेज या लेक्टेज, आपने ऊपर लेक्टेज लिखा था, या फिर यू कैन नेम सुक्रेज. Ma'am, amylase also. यस, अमाइलेज. This is your sucrase, which breaks sucrose into glucose and fructose. सुक्रोज आपके गन्ने की शुगर है, इट्स अ शुगर केन शुगर. शुगर केन में जो शुगर है दैट इज सुक्रोज. और अगर आपने गन्ने का जूस पिया है तो आपको एंजाइम चाहिए आपकी बॉडी में, सुक्रेज, सो दैट इट कैन ब्रेक डाउन सुक्रोज इनटू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज. This glucose and fructose can be absorbed by our body. इसी में सेकंड टाइप लिखो, some enzymes are named on the basis of their source. Some enzymes are named on the basis of their source. For example, papain. Papain में एज लगा ही नहीं है, ASE है ही नहीं. Papain. Papain is obtained from papaya. Papain is obtained from papaya. इसीलिए papaya में papain होने की वजह से it is not given to pregnant females, क्योंकि papain जो है enzyme that is used for making the pills, जो abortion pills हैं उनमें ये papain डाला जाता है. इसीलिए females, pregnant females, they are strictly asked not to have this papaya. I hope it is clear now. Next point, they are named on the basis of their action, on the action they perform.
सोर्स में एग्जाम्पल दे दिया पपाइन, पपाया से निकला है, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्शन दे परफॉर्म। अब इसमें एग्जाम्पल लिखोगे डिहाइड्रोजिनेस, डी का मतलब होता है रिमूवल, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, नाम से पता चल रहा है। तो डिहाइड्रोजनेस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऐसी एक और एग्जांपल आ जाएगी डी कार्बोक्सिलेज रिमूवल ऑफ कार्बन। डिहाइड्रोजनेस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, डी कार्बोक्सिलेज रिमूवल ऑफ कार्बन। So this is how we name them. Now I am coming to the next topic, that is classification. क्या यहाँ तक clear है सभी को? If yes, then just raise your hand fast. Raise your hand, everyone, if it is clear. मैम इंसुलिन का नाम किस पे रखा हुआ? Insulin, actually it is an hormone. We'll come to that topic also. ठीक है? That is an hormone. ओके Ma'am, please show the previous screen. Okay. Next one. Meenakshi, please let, okay, Pallavi, got it. Meenakshi, just tap on your screen. You'll see participants. उसमें raise hand का option होगा. Raise your hand if it is clear. Yes, Ansh, Mayank, Tanvi, Meenakshi, I'm waiting. Okay, Tanvi, Meenakshi, very good. Ansh, Mayank. Ma'am, just a minute, I'm writing this. Okay. Have you submitted your admission fee in the school? All of you who have taken the admission in government schools? Today the link will come and then we will submit. Okay, just inform me after that, okay? When everything is done, just let me know, everyone. Ma'am, link, Okay, ma'am. Okay, ma'am, link has arrived, but I haven't paid yet. okay. Ma'am, I don't know whether the link, because the link is not coming when I'm Okay. opening the website. Okay. No worries, bete. So next topic is classification. Done, ma'am. Okay, man. तो next topic is classification. तो classification का मतलब आप लोगों को सबको पता है. It is the grouping करना on the basis of their similarities or dissimilarities. जब एक जैसे होते हैं तो उनको एक ग्रुप में डाल देते हैं, that is classification. तो classification के basis में enzymes are classified into 6 categories. देखो, it is divided into 6 categories. इसको इसी सीक्वेंस में याद करना है, तो आई एम गोइंग टू टेल यू कोड जिसमें आप लोगों को याद करना है. ये आप लोग ऊपर टॉप पे ब्रैकेट में लिख लेना, बिकॉज इट इज जस्ट फॉर योर लर्निंग. OTHLIL ये याद करने के लिए इसी सीक्वेंस में लर्न करना है, इसीलिए आपको ये लिखना पड़ेगा OTHLIL. तो फर्स्ट हम O से सबसे पहले पढ़ेंगे, दैट इज योर ऑक्सीडो रिडक्टेस. ऑक्सीडो रिडक्टेज नाम से पता चल रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोथ. ऑक्सीडो रिडक्टेज एज इसलिए लगा है क्योंकि एंजाइम है. दिस ब्रिंग्स अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ. Ma'am, Oxido please reduction. repeat. Okay. Well, we have just now started with the classification. Classification, you know, it means grouping. तो classification में हमने सबसे पहला टॉपिक क्या है, it is divided into 6 categories. और 6 categories में आपको ये कोड याद करना है OTHLIL. तो O says ऑक्सीडो रिडक्टेज. ऑक्सीडो रिडक्टेज में आप एग्जाम्पल लिखो, इसमें ऑक्सीडो रिडक्टेज में
इट इज साइटोक्रोम, ये आपको याद करना है। साइटोक्रोम, साइटोक्रोम इसमें क्या कर रहा है? बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। Excuse me, ma'am. यस यस। Ma'am, so, ma'am, on my screen it is showing that I am the host now. No worries bete, wo actually there is some network issue in the office, so don't worry. Okay, ma'am. I can see that. Ma'am, please, can you repeat? bete, oxidoreductase, for example cytochrome oxidase। Oxidoreductase, for example cytochrome oxidase। Excuse me, ma'am. Yes Laksh। मैम MCQs होंगे आज? Yes yes, you have a test। Okay, ma'am. Okay, so Ma'am, it is oxidoreductase, objective or subjective? but yeah, I've added few 1 mark questions also today, so it's Okay, a ma'am. kind of a both objective and subjective। Oxidoreductase, next is second type, T से लिखना है अब आपने, देखो you can see it from the this code OTHLIL, तो T से अब आप लिखेंगे ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज का मतलब क्या होगा? ट्रांसफरिंग ऑफ ग्रुप। इट हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ वन ग्रुप, it helps in transfer of one group from one molecule to another। it helps in transfer, नाम से पता चल रहा है ट्रांसफरेज। it helps in transfer of one group from one molecule to another। for example transaminase। ट्रांसएमिनेज क्या करेगा? अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर करेगा एक जगह से दूसरी जगह, ट्रांसफरेज। थर्ड पार्ट इज, अब H से लिखना है तो H से आपके लिखोगे हाइड्रोलेज। समझ आ रहा होगा सभी को। O से था ऑक्सीडोरिडक्टेज, T से आया ट्रांसफरेज, H से है हाइड्रोलेज। हाइड्रा वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? वाटर। तो हाइड्रोलेज के बारे में लिखो, it helps in breakdown of large molecule into small by addition of water। एग्जाम्पल लिख लो, अमाइलेज। Can you please repeat? Okay, hydrolase, breakdown of large molecule into simpler by the introduction of water। breakdown of Ma'am, large for molecule, example, for example amylase, I've written on the screen amylase। Repeat once, ma'am. please, ma'am. Okay, I'll do that। Hydrolase is breakdown of large molecule into smaller by the introduction of water, for example amylase। अब OTH तो हो गया, अब LIL है। L से फिर आप लिखोगे Ma'am, अब please नेक्स्ट show टाइप। the last screen. ओके ओके मयंक। मयंक डन।
Yes, Mayank. Done. Okay, okay. Now coming to the next part, that is L. L से अब आप लिखोगे lysis, LYASES. OTHLIL था, अब LIL रह गया है, तो L से lysis. Lysis का मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन. Lysis means breakdown of complex into simpler. For example, histidine. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, is it different from hydrolase? It is different. It is different. Hydrolases is also very good question. Hydrolases is breakdown of large into smaller, but with the introduction of water. Lysis is breakdown of large into smaller without water. Got it? Yes. तो इसमें पानी के बिना टूटेगा. शाबाश. तो हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज. हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज. अब आई से आएगा आइसोमरेज. आइसोमरेज फिर से समझ आ रहा होगा. हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर्स. Helps in formation of isomers. It helps in formation of isomers. For example, phosphohexose isomerase. Phosphohexose isomerase. अब लास्ट रह गया LIL. L से अब है ligases. Ligases को याद करने का बहुत इजी वे है. Ligases means लगाना, जोड़ना. It binds the two substrate. Binding. It binds the two substrate. BIND, bind the two substrate. For example, pyruvate carboxylase. These examples are important from NEET point of view, but NCERT point of view से आपको ये क्लासिफिकेशन करनी है. और गवर्नमेंट स्कूल्स का ये पेट क्वेश्चन है. जनरली ये आता ही आता है. मिड टर्म में जरूर आएगा अगर ये चैप्टर आया आपको. I've already shared a booklet. When the from admissions in the government school are delayed this year only. This year, yes. इतना डिले इसी साल हुआ है, but otherwise जुलाई में शुरू हो जाता था सेशन. And Mayank, you must have seen I've shared a booklet of previous year question papers from different school. उसमें गवर्नमेंट का भी है, प्राइवेट का भी है. हाँ, तो वो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है जो क्वेश्चंस आपको समझ आते हैं. And we are trying to forward all these subjects question booklets in the groups, respective groups. So try to solve all the questions. Okay. ठीक है. सिर्फ एक ये वे है कि आप Okay, अच्छा ma'am. स्कोर कर सकते हो. ओके, तो जस्ट लुक ऑन द स्क्रीन अगेन. वी हैव डन द क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन का मतलब है ग्रुपिंग. तो इसके ग्रुप के लिए हमने OTHLIL बोला. O से ऑक्सीडोरिडक्टेज, T से ट्रांसफरेज, H से हाइड्रोलेजेस. Hydrolase. Yes, hydro means water. Yes, and next, Isomerase. yes, lysis, isomerases, and ligase. Okay, very good. तो I think अब आप लोगों को समझ भी आ गया होगा. This is the classification, and in this sequence only you have to learn
अगर आप LIL जो है पहले लाइगेजेस और बाद में लाइगेजेस लिखते हो देन आल्सो यू आर रॉन्ग. यू हैव टू राइट पहले लाइगेजेस देन लाइगेजेस. Okay, Janvi, clear everyone? So Yes. this is okay, Tanvi. This is a sequence you have to learn it. और इसमें एक चीज हमने अभी मैंने आप लोगों को एंजाइम के बारे में बताया था कि एंजाइम इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स. एक प्रोटीनेशियस पार्ट है एपोएंजाइम. Epoenzyme is a protein part, plus it has non-protein part which is called as cofactor. Cofactor. So it has two parts, epoenzyme and cofactor. तो अगर एपोएंजाइम को बात करें तो इट इज प्रोटीन. अगर हम कोएंजाइम की या कोफैक्टर की बात करें इट इज अ नॉन प्रोटीन एंड कोफैक्टर कैन बी. अब ये प्रोटीन का तो बना नहीं है तो इट कैन बी ऑर्गेनिक, इट कैन बी लिविंग, इट कैन बी प्रोस्थेटिक ग्रुप. प्रोस्थेटिक ग्रुप जैसे अभी हमने पढ़ा था आयरन, या तो आयरन हो सकता है या फिर किसी लिविंग कंपोनेंट का पार्ट हो सकता है. जैसे हम खाते हैं विटामिन्स. आप बहुत ध्यान से सुन रहे हो कि एंजाइम में दो पार्ट्स होते हैं. एक पार्ट हमने पढ़ा एपोएंजाइम विच इज प्रोटीन पार्ट, एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है कोफैक्टर. सिंपल एंजाइम्स में सिर्फ एपोएंजाइम होगा लेकिन कंजुगेटेड में एपोएंजाइम और कोफैक्टर होंगे. कोफैक्टर प्रोटीन के नहीं बने होते इसीलिए या तो वो बने होंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप के. प्रोस्थेटिक ग्रुप जैसे मैंने बताया मेटल, एल्यूमिनियम, आयरन, कोई भी मेटल हो सकता है, नॉन लिविंग पार्ट है. या फिर वो ऑर्गेनिक पार्ट हमारी बॉडी के पार्ट से बने होंगे. बॉडी में कंपोनेंट्स होते हैं जैसे जो हमारा विटामिन है, विटामिन हैं, उनमें एक एग्जांपल आती है NAD. एक विटामिन है इसका नाम है NAD, निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है बट ये जो NAD है दिस कैन बी यूज्ड एज अ कोफैक्टर. तो बहुत जगह आपको NAD मिलेगा विच इज अ कोफैक्टर. हमारी बॉडी में है, लिविंग है, इसीलिए इसको बोल दिया ऑर्गेनिक. तो आई होप सभी को समझ आ रहा होगा कि एंजाइम इज मेड अप ऑफ एपोएंजाइम एंड कोफैक्टर. और एपोएंजाइम और कोफैक्टर मिलके बनाते हैं हॉलो एंजाइम. प्लीज राइट दिस इक्वेशन. कई बार क्वेश्चन आता है नीट में, व्हाट इज हॉलो एंजाइम? दिस इज नॉट गिवन इन NCERT. तो हॉलो एंजाइम is formed from epoenzyme and cofactor. तो एंजाइम्स जो हैं इतने इंटरेस्टिंग है. अब आई विल गिव यू वन एग्जांपल. अगर आपने कभी सुना हो साइनाइड के बारे में, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइजन. किसने सुना है? जस्ट रेज योर हैंड. साइनाइड, इट्स सच अ स्ट्रॉन्ग पॉइजन दैट CID इवन में सुना था मैम. CID में सुना. ओके, इट इज स्ट्रिक्टली बैन. You cannot ask for cyanide in the market. So if Your voice is not audible, ma'am. Ma'am, but we can make apple cyanide from apple seeds. yes, no, but that is not in pure form. Yes, apple seeds, they contain small amount of cyanide. You're right, very good. But pure cyanide, Meenakshi, is it audible now? Meenakshi Soni? Meenakshi Soni, is it audible now? Yes. Oh, will you try to change your seat? No, ma'am. No? Meenakshi, just try to change your seat, bache. Change your position because Hanji. sometimes the connection is okay. So
ओके सो बच्चे देखो साइनाइड मैंने अभी बताया आप लोगों को क्या होता है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग पॉइजन है कि इवन इफ इट टचेस ऑन योर टंग, if you try to touch it on your tongue and if it is there is a cut around, आपकी जो ऑक्सीजन आपकी ब्रीथ रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीटली सीज हो जाएगा. यस यस तो इसको स्ट्रिक्टली बैन किया हुआ है. तो पहले अर्लियर टाइम्स में क्या होता था जब किसी के किंगडम में अटैक होता